اور ساتھ ہی ساتھ جو فسکل سائڈ پہ تھا کہ ہم اپنے اخراجات کے اندر رہیں جناب اسپیکر، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو پرائمری سرپلس ہے، جو اخراجات اور آمدنی کے درمیان فرق ہے، وہ شاید پہلی بار 10 سال میں سرپلس ہو گیا بجائے ڈیفیسٹ کے۔ تو یہ پہلے جو 6 مہینے گزرے ہیں اٹ واز اے سرپلس آف 0.6% آف دا GDP۔ یہ ایسے کبھی نہیں ہوا جناب اسپیکر۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پر، آئی ایم سمپلی اسٹیٹنگ دا فیکٹس۔ اب آپ آئیں کہ فسکل ڈیفیسٹ کو کس طریقے سے ریڈیوس کیا گیا۔ یہ فسکل ڈیفیسٹ بھی 2.7% تھا بجٹ کا، اور اس کو ہم نے کم کر کے 2.3% کیا پہلے ہاف میں، پہلے ہاف یعنی جولائی سے لے کر دسمبر تک۔ تو اس کا ٹرینڈ بھی ڈاؤن ورڈ، پرائمری سرپلس پازیٹیو۔ اب آپ کہیں کہ اچھا ٹیکسز تو آپ نے 17% بڑھائے، لیکن نان ٹیکس ریونیو کا کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا گول یہ نہیں کہ ہم فقط ٹیکس سے ریونیو بڑھائیں، ہمارا گول یہ بھی ہے کہ ہم ٹیکسز کے علاوہ اپنا ریونیو بڑھائیں۔ تو وہ کتنا بڑھا ہے جناب؟ وہ 170% بڑھا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ جو ہے نان ٹیکس ریونیو کا اس سال کا، وہ 1100 ارب ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ کمٹ کر رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ 1500 ارب ہوگا، اور یہ ٹارگٹ کو 400 ارب سے ایکسیڈ کرے گا۔ تو جن کو یہ فکر ہے کہ اگر ہماری ٹیکس سائٹ پہ کچھ کمی ہوگی تو ان کو یہ اطمینان بھی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ گیپ ہم نان ٹیکس سائٹ سے بھریں گے۔ دوسری کیا چیز ہوئی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا پاکستان میں اعتماد بڑھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں معیشت میں استحکام آیا۔ آپ دیکھیں کہ ایکسچینج ریٹ جس کے بارے میں کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے کہتے تھے یہ 180 ہوگا، یہ 200 ہوگا، وہ کہاں پہ ہے جناب اسپیکر؟ لگتا ایسے ہے، ایز اے فائنانس منسٹر مجھے اس موضوع پہ زیادہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ یہ ایک ایسی سطح پہ ہے جہاں پہ اسٹیبل ہے۔ پچھلے 5 سے 6 مہینے وہ اسٹیبل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اطمینان سے یہاں پہ بزنس کے ڈیسیشنز لے سکتے ہیں، اور بیرونی ملک کے لوگ کانفیڈنس سے یہاں آ سکتے ہیں، اور وہ آ رہے ہیں جناب اسپیکر۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر میں تعریف کروں گا اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوگی کیونکہ میں اس حکومت کا وزیر ہوں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، باہر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے ملک کے وہ لوگ جو ان چیزوں پہ نگاہ رکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے تو میں IMF کا اسیسمنٹ دوں، یہ میں ان کی رپورٹ سے جو انہوں نے اپنے بورڈ میں پیش کی ہے ہماری ریویو کے بعد، اس میں لکھا ہے کہ آل پرفارمنس کرائٹیریا، یعنی ہر وہ پرفارمنس کا ٹارگٹ جو ان کے ساتھ طے ہوا تھا، were met with comfortable margins، وہ بہت آرام سے اور پورا ہوا۔ یہ IMF کے بورڈ کی فائنڈنگ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بلومبرگ انڈیکس کیا کہہ رہی ہے۔ بلومبرگ دنیا کی سب سے بڑی جو فائنینشیل سروس ہے اس میں سے ایک ہے۔ اس نے کہا کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ان دا ورلڈ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب، بلومبرگ۔ اور اس نے کہا کہ اگست سے لے کر جنوری 20 تک یہ ڈالر ٹرمز میں دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ، کیونکہ روپیز میں بھی بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ، ڈالرز میں بھی، اس لیے کہ ڈالر اسٹیبل رہا اس دوران، اور 50% اضافہ ہوا پاکستانی کمپنیز کی ویلیو میں۔ اب آپ دیکھیں کہ ورلڈ بینک نے کیا کہا۔
वर्ल्ड बैंक ने कहा कि तमाम दुनिया के ममालिक जो आसानियां पैदा कर रहे हैं अपने बिजनेसमैन के लिए, उसमें पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 ममालिक में से है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या कहा? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डायरेक्शन सही है और इतनी सही है कि हम इनके लिए खुसूसी पैकेज बना रहे हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बोर्ड में जाकर पहली बार किसी मुल्क के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया ताकि पाकिस्तान को सिग्नल जाए कि वो उनके साथ हैं। मूडीज ने क्या कहा जनाब स्पीकर? मूडीज इदारा है जिसका बुनियादी मकसद है कि वो मुल्कों की इक्तिसादी सेहत के बारे में अपनी राय दें और उनकी राय को माना जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऐसी है कि इसको स्टेबल का ग्रेड दिया जाए, और उन्होंने हमारी जो रैंकिंग थी उसमें इजाफा किया। तो ये दुनिया के और लोगों ने क्या कहा जनाब स्पीकर? जो दुनिया के फाइनेंशियल हाउसेस हैं उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मईशत में आगे बढ़ के हासिल हिस्सा लेना चाहते हैं, और पाकिस्तान की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पिछले 7 महीने में $3 अरब जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में ऐसे। और लोगों ने क्या कहा जनाब स्पीकर? जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिकली स्टेबल हो गया है और यहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हम पाकिस्तान के अंदर आना चाहते हैं, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर तकरीबन 100% से ज़्यादा इजाफा हुआ है 7 महीने में। और लोगों ने क्या कहा? पूरी दुनिया के टूरिस्ट पाकिस्तान आना चाहते हैं। डबल हुई टूरिज्म की तादाद दुनिया से, डबल हुई तादाद टूरिस्ट की पाकिस्तान में। और कॉन्टिनास ट्रैवलर जो दुनिया के सबसे मशहूर मैगजीन है जो ममालिक की सेफ्टी सिक्योरिटी और के बारे में राय रखती है, उसने कहा पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है 2020 में। तो ये सब लोग जो हैं ये कोई किसी पार्टी के मेंबर नहीं, ये सब लोग जो हैं खरीदे नहीं जा सकते। ये सब लोग इंडिपेंडेंट लोग हैं, इंडिपेंडेंट अदारे हैं, और वो जो कह रहे हैं वो मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अब हमें क्या करना है? कुदरती बात है कि हमारे को दिक्कतें हैं इस वक्त, जिसमें एक जो है वो कीमतों में इजाफा है, और हमें देखना है कि इसकी वजह क्या है और हम क्या चीज़ें कर रहे हैं और क्या चीज़ें मज़ीद करनी चाहिए, और ये मामला जो है कितना जल्द मुकम्मल तौर पे काबू में आ जाएगा। देखें, इन्फ्लेशन के जो वजूहात हैं वो मैं आपके सामने पहले पेश करूंगा। एक चीज़ तो ये है कि चूंकि डिवैल्यूएशन हुई उसकी वजह से बाहर से जो चीज़ें आती हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ, जिसमें ख़ास तौर से वेजिटेबल ऑयल, और चूंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी कुछ ऐसी चीज़ों से प्रोड्यूस होती है जो बाहर से आते हैं, उनकी कीमत उसको मुतासिर करती है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमतें बढ़ी, जैसे पाम ऑयल की बढ़ी, सोयाबीन की बढ़ी, और वो हमें एडजस्ट करनी पड़ी। तीसरी चीज़ ये कि जो पिछले 3 साल में स्टेट बैंक से बोरोइंग की गई उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ। और चौथी चीज़ ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें जानबूझ के नहीं बढ़ाई गई पिछले 2 साल में, उसको रिलीज़ करने में इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में। लेकिन मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में हुकूमत क्या कर रही है। लोगों पे बोझ
शेयर करने के लिए। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बिजली कंज्यूम होती है उसका 72% जो कंजम्पशन है वो हुकूमत सब्सिडाइज करती है। 72%, यानी उसमें कबायली इलाके हमारे आ गए, उसमें हमारे ट्यूबवेल के यूज़र आ गए, उसमें हमारे वो कंज्यूमर जो 300 यूनिट से कम बिजली करते हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स आ गए, और कई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कलेक्शन जो है वो 60-70% से ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आप इन चीज़ों का मजमुआ ले लें तो 72% जो बिजली है वो हुकूमत सब्सिडाइज कर रही है, और उसके लिए 100 अरब रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। लेकिन दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं बिजली की कीमतें कम करने के लिए? हम कोशिश कर रहे हैं कि चोरी को बचाया जाए और चोरी को कम किया जाए। और आपके साथ एक नंबर शेयर करना चाहता हूं, जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त जो सर्कुलर डेट था उसमें 38 अरब रुपए इजाफा हो रहा था हर महीने, और ये उमर अयूब साहब और इनकी टीम ने, नदीम बाबर साहब और इनकी टीम ने इस नंबर को कम करके 38 अरब को कम करके 12 अरब रुपए किया है। तो क्या ये मसला हल हो गया है? नहीं, लेकिन क्या इस मसले को काफ़ी हद तक काबू में लाने के लिए कोशिशें की गई हैं और उनके कुछ अच्छे नताइज आए हैं? जी हाँ। अब और जो आखिरी दो वजूहात थी कीमतें बढ़ने की, एक तो ये कि कुछ सीजनल फैक्टर्स होते हैं, और चूँकि टमाटर या इस तरह की चीज़ें ये इंडिया से इंपोर्ट भी की जाती थी और हमारे ताल्लुकात उनके साथ ऐसे नहीं हैं इस वक्त कि वहाँ से की जाती, तो कुछ चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ों में इजाफा हुआ। और आखिरी चीज़ ये कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, आपको ये पता है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सूबाई हुकूमतें और ज़िले इंतज़ामिया का भी एक रोल है, तो इसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने क्या फ़ैसले किए कीमतों को कम रखने के लिए पॉलिसी की हद तक। पहले तो हमने एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रखी, और आपने देखा कि 6 से 7 महीने एक्सचेंज रेट में कोई तब्दीली नहीं हुई, और इसका एक फ़ायदा जो हुआ वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि ये एक तासिर है इस मुल्क में कि गोया पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की कीमतों में इजाफा किया गया। दरअसल जनाब स्पीकर, पिछले 7 महीने में पेट्रोल, केरोसिन और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। कुछ महीनों में मामूली इंक्रीज की गई, कुछ महीनों में मामूली डिक्रीज की गई, और नेट जो रिजल्ट है कि पिछले 7 महीने में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। लेकिन ये स्टोरी नहीं है, बट ये फैक्ट जरूर है। अब आप देखें कि स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट की वजह से कुछ चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ी। दूसरी चीज़ ये कि हमने हुकूमती अखराजात कम किए, इसका मतलब है हमने डिमांड में इजाफा नहीं किया और